आप कोई भी कार्य का शुरुआत करें ना, पूरा जोश उस वक्त तक लगाए रखें जब तक वो चीज ओवर नहीं हो जाए। आप बीच में कोई चीज का काम में डिस्पायर हो जाते ना, जैसे माय सन आल्सो इन द वर्किंग ऑफ सेकंड ग्रुप, पापा बहुत पढ़े हो गए, मैं नहीं, गिव अप नहीं करना बीच में। गिव अप ओनली ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन इज ओवर। यू डोंट नो हाउ मेनी एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू। तेरे को पास करने में कितने लोगों की ब्लेसिंग काम कर रही है, पर क्या यू डोंट फील दैट यू आर अलोन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, बट डोंट गिव अप। तो ऐसा ही हमारा ग्लोबल हीलिंग डे में चल रहा है, बट आई अप्रिशिएट द प्रतिभा, you also built up that energy. I also built up the energy. Jaya, everybody is working, and I'm sure, 1000% sure, program will be beyond our expectation, 100%. And we are able to send the message to the all over the globe people, which we are already sending, that let's pray for others, God pray for you. And maybe possible you have to fight with your own botheration worry, second thing, but you will enjoy your life along with your botheration and worries. मेरी परेशानी तकलीफ दूर होंगे इसके लिए मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, दैट इज वेरी रॉन्ग। इट्स माय राइट, इट्स माय ड्यूटी, जस्ट लाइक हाउ आई टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, द सेम ड्यूटी आई हैव टू प्रे फॉर समवन एल्स without expectation that my problem will solve. When you do the prayer for others without any expectation, that time miracles happen. Always. Which I feel lot of time, not more than 100 times, which I feel. If person is coming, oh, Krishna Guru is coming, I will take the healing and I will get rid of from that my pain. Yes, one person is coming for him, just we try. How many medicine you are trying? Every medicine working? No. Medicine also get some time to get a result. Same thing is apply on healing also. Healing prayer, when you pray, how many times, whenever you pray, how many times is somebody praying, how many times you pray for someone else. If I am going to heal Papia, how many times Papia pray for someone else? Papia अपने में उलझी रही है और ये एक्सपेक्ट करे कि कृष्णा गुरु जी आएंगे और एक हीलिंग में ठीक हो जाऊं मैं। नॉट पॉसिबल। मे बी पॉसिबल, but if you not keep any type of expectation, it's my humble request, whenever you do it without any expectation, just give your 100%. Focus whatever you can do. First, take care of your priorities. Again, I am saying, first take care of in the rest of time what we can do. In that time, I am sending one, एक आपको भेजता हूं मैं टेक्स्ट, अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो, वीडियो में जरूर बोले। हमारी ऊर्जा, हमारी आवाज का बल प्रतिभा और ग्लोबल हीलिंग टीम को, जिनको सबको जाना चाहिए, है ना। ये सब हम ये महसूस होना चाहिए कि शी इज नॉट अलोन। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ, मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, जो भी कर सक बना के भेज सकता हूँ, भेज के फुल इसके साथ ये एक्सप्रेशन इतना गुरु जी को कैसा लगेगा क्या। डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट, जस्ट बिंदास। हे, लेट्स प्रे टुगेदर, वेयर इन न्यूयॉर्क, when on the 12th August, let's on the 12th August, the part of become Global Healing Day, where we pray for others and get the touch healing from the Krishna Guru. बस ऐसा जो मैंने अभी मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। It should be connecting, na? Okay. So I request Jaya, you just start whatever you want to perform. First, give a clap for her. She's voluntarily become ready. It's a morning time there, 7:30. She's ready that I have to perform something, and I appreciate and I offer my kudos blessing to you. Yeah, in the morning time you make prepare and you are ready to offer someone something, perform. Okay, most welcome. What you are going to perform, let us first say. प्रणाम गुरुजी, टुडे इज प्रदोषम आल्सो, सो आज मैं लिंगाष्टकम रिसाइट करूंगी एंड शिव भगवान के ऊपर 2 और स्तुतियां, 12 ज्योतिर्लिंग और एक। So keep your eyes closed. Everybody keep your eyes closed and just visualize the any Shivling or any Shiva's statue.
ओम जी कन्हैया जी। गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते टू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारशुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टधरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोढते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालाम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च धाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेति तु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारां
गुष्मेषां च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्राक्तपटे नरः सप्त जन्म कृलं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। Blessing Jaya, very beautiful performance with the feelings. Very good. Small clap for Jayaji and two clap that she took the voluntary interest, the highly appreciable. Just I want to quote something, the whatever she आप जो लिंगाष्टक पढ़ा, इसमें एक वर्ड आता है रावण दर्भ विनाशक लिंगम। रावण के अहंकार का शिव ने वध किया। रावण तो उनका प्रिय भक्त था, पर अहंकार का पत इन्होंने किस रूप में किया? राम के रूप में। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर मैं आपको प्रायोगिक बातों में ला रहा हूं, घरेलू बातों में। ये आपको सबको मालूम है, दक्ष का जो यज्ञ था, देखिए मैं डायरेक्ट यहां पर कोट कर रहा हूं, हाँ आपको थोड़ा सुनना है। यज्ञ था, उसमें पार्वती माता, सती माता क्यों कूदी, आपको मालूम है ना? एवरीबडी नो इट, आपको मालूम है ना? वो क्या हुआ था कि शंकर भगवान को उन्होंने इनवाइट नहीं करा था उस यज्ञ में। यज्ञ तो यज्ञ है। अब शंकर भगवान को बैठने कोने का अपमान हो गया, तो सती माता अग्नि यज्ञ कुंड में कूद गई। मेरा माना अग्नि कुंड में कूद गई तो और पवित्र हो गई। वो तो एक सती स्त्री, वो यज्ञ की भेंट चढ़कर। लेकिन इसमें भावार्थ क्या आया है, आप देखिए। दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। महाराज दक्ष के महायज्ञ का जिसने विनाश किया हो, यहां पर मैं यज्ञ का विनाश करने वाले आप कौन होते हो? आपने तो विनाश अपनी पत्नी को लेकर आपने अपना क्रोध जिया है, आपने यज्ञ का अपमान नहीं किया, जहां तक मेरी सोचना है। बात ये है ना, अगर मैं शिव हूं, अगर मैं, आपने यहां पर लिखा है महाराजा दक्ष के महायज्ञ का विनाश किया। आई एम नॉट एग्रीड विद दिस वर्ड। वी आर चेंटिंग सो लॉन्ग एंड डायरेक्टली आई एम कोटिंग। आर यू एग्रीड? क्या आप सहमत है मुझसे कि जो लिखा? अभी हम कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा। दक्ष विनाशक लिंगम, एक तरफ हम दक्ष की यज्ञ बताओ, वो सूर्य का अग्निहोत्र मंत्र पड़ता है, एक तरफ उनके यज्ञ का विनाश किया। यज्ञ का विनाश क्यों किया? उनको तो शिव जी से नाराजगी हो गई थी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को और आरती को, अगर जया आरती की माँ है, पिता है, वो बुलाए अपिया और दोनों, और फॉर एग्जांपल मेरे से कोई दुश्मनी, अमर की लफड़ा हो गया, अमर तो अमर मुझको नहीं बुलाता है और मेरा अपमान करके मेरे बारे में कुछ दो शब्द बोल देता है। मेरी पत्नी कूदना है, प्रैक्टिकल लो, मैं मेरी पत्नी के वियोग में आता हूं, अपमान हो गया, चलो ठीक है मेरी पत्नी, यानी मैं उसकी लाश वो लेकर मैंने यज्ञ का विनाश थोड़ी किया। आप समझे मेरी बात को, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सब कुछ शब्दावली है ना। अगर कोई बच्चा ही आपसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? मम्मा, सती पार्वती, सती फादर दक्ष मस्ट बी पावरफुल पर्सन। यस, इतना बड़ा महायज्ञ करवाया ना, सभी देव मुनि आए थे। जहां देव मुनि हो तो आप अपनी व्यक्तिगत अहंकार से क्या कोई यज्ञ का नुकसान करोगे? ऐसे भाव नहीं है, लेकिन इसमें भाव ऐसे प्रदर्शित होते हैं। वही रावण के बारे में शिव तांडव लिखा, और वही रावण दर्प विनाशक निम्ब, रावण का अहंकार का वध किया। तो ये सब बातें जो लिखी है ना, हम पढ़ते हैं हमारे भाव से, हम शिव की आराधना पढ़ते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनकी तार्किक बातें भी जाने हैं। गॉट इट बाय पॉइंट। अभी हम लोगों को थोड़ा बेसिकली हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में समाज ऐसा, हम कुछ चेंज करने जाएंगे तो भागेंगे, लड़ना लेंगे हमारे पीछे, धर्म का अपमान कर रहे हो, हमारी आस्था का अपमान करो, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएगा
कि दक्ष का यज्ञ का विनाश कैसे करो, तो कोई यज्ञ का विनाश कैसे हो सकता है? यज्ञ तो यज्ञ, आप अपने व्यक्तिगत अहंकार के पीछे यज्ञ का विनाश करोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन ये भी कथाएं हैं, मैं तो साक्षी नहीं हूं कथाओं, लेकिन मैं मानता हूं, लेकिन मानने के साथ साथ जानने की भी कोशिश करता हूं। इसके लिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ब्लाइंड फेथ का व्यापार इतना ज्यादा है, इन लोगों को दूंगा भाई आप कुछ बोल दो। अरे वो बेचारे, एक ने वो हनुमान चालीसा में दो गलत लाइनें लिखी तो वो बोल दिया तो वो पीछे पड़ेगा लोग। आपको तो कुछ आता नहीं, शास्त्रों के साथ खेलखाड़ करते हो। अरे प्रिंटिंग वाले ने को दो लाइन अलग लिख दी होगी, गलत छप गई होगी तो वो छपे आ रही, वो क्यों छपी आ रही लोग? तो थोड़ा सजगता के साथ कोई भी आप मंत्र पढ़े। ये तो बहुत अच्छा, लिंगाष्टक तो पूरा आज की तारीख में पूरा श्रवण में हर व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ कभी उसकी हिंदी मीनिंग पे भी ध्यान दो। लिंग, आप देखिए लिंगाष्टक का तमिल में आपकी जो भाषा आती है उसमें उच्चारण करो, वो आएगा। देख पढ़ो आप कि उच्चारण क्या क्या है, और इसमें किसके साथ कन्विंस हो, क्योंकि योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉलेज टू समवन एल्स। मैं मेरे लाइनों में कहीं 2-3 लाइन गाता ही नहीं। सर्व सुगंध लिव, मैं नहीं गाता 2 लाइन, ये मेरी इच्छा है। और पूरा नहीं पढ़ा, पाप लगेगा, लगे तो लगे, लेकिन जहां पर मैं कन्विंस नहीं वो नहीं करूंगा। इट्स नॉट माई ईगो, इट्स नॉट माई, कोई मेरा सेल्फिशनेस नहीं है, मेरा सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सब आपको छोड़ता हूं। कोई भी मंत्र आप डालिए गूगल में अपनी लैंग्वेज में, मराठी में, तमिल में, इंग्लिश में, सब में ट्रांसलेट है। जस्ट रीड इट। ऑलवेज आई से मान के चलो, उसके बाद जान के चलो। अब मान के चलने वाली पीढ़ी खत्म हो गई। हर व्यक्ति के पास गूगल है, और अगर आपका बच्चा आपको दिखा दे, क्या जवाब दोगे आप? आर यू एबल टू कन्विंस योर चाइल्ड? अगर पपिया से अनिशा पूछ ले, हाउ इज मम्मा पॉसिबल दैट शी वाज टुक द पर्सनल रिवेंज एंड नाउ नॉश? तो हमें अपने विवेक से, क्योंकि हम हमारी बात तो नहीं कर रहे हैं, हमारी तो उम्र हो गई, हम आने वाले बच्चों को क्या दे जाएंगे, इस पर आप चिंतन करके रखें। इसीलिए आज की तारीख में कोई ये मंत्रों पे ध्यान नहीं देता, बस सुन लेते हैं, अच्छा लगता है संस्कृत में, हाँ लिंगम लिंगम, हमारा ध्यान नहीं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, हम कुछ लोग, चंद लोग जो 12-15 लोग इकट्ठे होते हैं, वह जरूर इस पे फोकस करें। आपको लगे ऐसा, मेरे अगर मेरे शब्द से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट वॉट एवर आई सेड, इट्स माई ओपिनियन, इज अप टू यू फॉलो और नॉट। वो कोई भी आप संस्कृत का श्लोक डाल दो, कोई भी चेंटिंग डालो, वो गूगल पे डाल दो, कन्वर्ट इन हिंदी या कन्वर्ट इन इंग्लिश तेलुगु, यू विल कम टू मी। अभी हम क्या करते हैं, पुरानी चीज को चैलेंज नहीं करते, हम उसको ही सत्य सत्य करके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ शिव भगवान का पालन क्या, शिव भगवान नहीं थे, एक पति के रूप में थे वो दक्ष के जवाई के रूप में थे वो। तो दक्ष का उन्होंने अपमान किया होगा, तभी उन्होंने बेटी के ऊपर जमाई को नहीं बुलाया। तो उस वक्त वो रूप में थे, एकादशी के रूप में थोड़ी थे। देखिए आप, मैं कृष्णा गुरु जी हूं, मैं किसी के घर जाता हूं, आरती है तो वहां मेरा अपमान हो जाता है, वो मेरा रोल है। अपमान हो गया तो हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने भी कुछ करा होगा। ऑब्वियसली दोनों साइड नहीं होता कि बगैर सोचे अपने लड़की के पति को आप सजा दे दोगे, दे दोगे सर, अपमान कर दोगे, पॉसिबल है? यस नो? आज के टाइम में वी नॉट डिसरिस्पेक्ट द पर्सन, मे बी नाउ डेज वी आर यूजिंग हिज नेम। अभी हम नाम भी नहीं बोलते थे, कंवर साहब बोलते हैं अभी हमारी पीढ़ी। अब तो नाम बोलने लगे, ये सचिन कहाँ गया, ये सुनीता को तंग मत कर। इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर। तो आप सोचो, ये सब चीजों को सोचना, अपना अपना डिवाइन एस्ट्रोहेनिक परिवार तो कम से कम सोचे और इस पर निर्णय ले, आपको कैसे ले जाना है आध्यात्मिक। मेरे हिसाब से मेरा सजेशन यही है कि आप इन चीजों को, आप बताओ, इसके अंदर मैंने पढ़ा कि भस्म क्यों लगाते हैं, सांप क्यों वो लगाते हैं, चंद्रमा क्यों है, ये सब कारण है। ये कारण मैंने पढ़े तो मैं कन्विंस ही नहीं हुआ किसी भी कारण, क्योंकि से किसी लोगों ने लिख दिए होंगे, क्या जाता है। आप आज 25 जने मिलकर ले गए कि शिव का बनने के बाद 52 की जगह 54 टुकड़े हुए थे, 52 के 54 हुए थे।
आप 12 जने रोज लिखते चलो। आज से 10 साल बाद गूगल निकले 54 टुकड़े हुए थे। अभी हम उस दुनिया में नहीं है। अभी हम ऐसे दुनिया में कि हम जो देख रहे हैं वो हमको बाध्य होना पड़ रहा है देखने के लिए। अब आप समझ के करें, कम से कम मीनिंग पढ़ें, थोड़ा चेक करें, और अपने भारतीय जो हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारा इंटेंशन ये नहीं है, लेकिन हमारा इंटेंशन धर्म के प्रति अच्छा है कि हम हमारे शास्त्रों को थोड़ा रेक्टिफाई करके नई जनरेशन तक पहुंचाए। आज हमने प्रश्न उठाया त्रिशूल, क्या कारण है शिव ने त्रिशूल रख के दिया? तीन चीजें। और त्रिशूल के नीचे ऊती है वो नोक, तीन दोष, तीन काल। सबसे पहले तीन दोष। दोष कौन से होते हैं? एक वात, पित्त और कफ। इसको देखिए, आप वो दोनों को लेके बैलेंस करके चलो। पहली चीज तो ये, अगर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा आपके शरीर को। यस, तीन तीन लोक है, तीन काल है। अलग अलग तीन चीजों को आप अपने लेवल से भी देख सकते हो। मेरा मानना ऐसा है कि तीन दोष होते हैं, तीन काल होते हैं, लेकिन तीन गुण जो सत्य, चित्त और आनंद, जो आपके तीन नाड़ी के दोष होते हैं, शरीर के विकार के कारण बनते हैं। उन्होंने भी त्रिशूल के पहले शरीर को ध्यान दे और ये तीनों दोषों को बैलेंस करके चल। जैसा त्रिशूल बैलेंस होता है। तो हम कहते हैं अभी बातों को इस प्रकार, आप बच्चों को बोलेंगे भाई मम्मा व्हाई दे कीप द त्रिशूल, बिकॉज देयर बॉडी हैव द थ्री एलिमेंट्स। in Ayurveda, they three what? Vata, Pitta, Kapha. Because due to Pitta, the abdominal problem has been started. Vata, you just balance it. How you balance it? You keep the daily routine with the nature. Take the don't drink the water after taking the dinner and lunch too much. आप समझा सकते हैं बच्चों को। वही त्रिशूल को हमने अपने मस्तिष्क से, आप लोगों की उपस्थिति से, हमने उसको ईश्वर से जोड़ दिया, हमने आपके हेड से जोड़ दिया। भले ही मैं उस त्रिशूल भाव जिंदा रखा होगा, कोई मैं मेरे हिसाब से कन्विंस हूं, बच्चों को बोलूंगा तीन, आप तीनों त्रिशूल, थ्री एंगल, थ्री एंगल यू हैव टू कलर अबाउट योर थ्री एंगल्स। व्हाट? यू अबाउट योर बॉडी हैड द थ्री impurities अबाउट योर, है क्या? हाँ मम्मा, यस यस आई विल टेक केयर ऑफ। क्योंकि हमसे पूछने का साहस वो हमें करता नहीं, लेकिन वो पूछता है तो हमें बताना पड़ेगा। और कुछ हम उसको ऐसा बताएं कि नहीं वो तो हवन में कूद गए थे, ऐसा हो गया था, तीन को लोग के मालिक हैं इसलिए ऐसा, वो डाइजेस्ट नहीं होता आज के बच्चों को जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। आपको, यू आर गेटिंग मी ना, मुझे समझ लेना आप, आर यू गेटिंग मी? कंचन कन्वेंस है, तुम मुझसे नहीं है। कंचन तो बहुत भगवान प्रिय है। कंचन शाप तो नहीं देगी मुझको? अनम्यूट करो। भगवान के बारे में ऐसा बोलो, बस ये अंधविश्वास में ही। हाँ प्रणाम बोल। गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही गुरु जी। अभी तो सीख गए हम लोग के बच्चों को क्या सिखाने का। हाँ ये बात है ना। और हम तो अपन से, और अपने को बेटा हमको तो प्रचार तो करना नहीं बाहर, कि हमको कंचन देवी बन के बैठे बाहर माइक पे लेके, माइक लेके हमको मारना दौड़ेंगे वो लोग सब लोग। अरे क्या बोलता तुम हमारे धर्म के बारे में, लाइक दिस। बट हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म द नॉलेज टू अवर चाइल्ड, कि वह नॉलेज फिर न जाने कितने सदियों तक चलता रहेगा। और मैं बड़ी बात नहीं करता, आने वाले 12 जने ही हमारे 15 लोग हैं, अगर ये 15 जने 15 परिवार को बताने लगे तो इतने लॉजिकल मेरे पॉइंट बोले हैं आपको समझाएं, जो आने वाले टाइम में पीढ़ी से चलते रहेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 70 साल, 200, कभी ना कभी ये चीजें सामने आ जाएंगी। हाउ टू अपग्रेड? बस गलती आपको मिल गई, कृष्णा गुरु जी मिल गए जो गलती बताने काम है, कृष्णा गुरु जी अपने ऊपर कष्ट ले गए, जो अगर भगवान को तकलीफ देना होगी मुझको दे देगा भगवान। लेकिन आप बच्चों को ये समझा के जाए। डमरू का भी कितना अच्छा कल हमने मुंह से निकल गया। डमरू किसके हाथ में रहता है? एक तो भोले के हाथ में और एक मदारी के हाथ में। वो मदारी हिलाता है, बोल जमूर है, चल, वो डमरू वो हिलाता डलता है। बस वैसे हम ऊपर वाले के डमरू बंदर है। ना अपने कुछ चला सकते, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत जाके वापस आ जाते हैं। दिन को रात में बदल नहीं सकते आप।
जो काम है रात को करना है, जो काम है दिन में करना है, बस। बंदर है प्योर। 90% लोगों की डेली रूटीन सेम है, पर थोड़ा फंक्शनल अलग अलग है, बस। जैसे कार के रूप में ब्रह्मांड है, तो कार का कोई टायर के पास लगा हुआ है, कोई बोनट के पास लगा हुआ है, कोई इंजन में लगा है, कोई नट। एक ही रूटीन है, चलना है। सबका एक जैसा रूटीन है। आप चेक कर लो, भले अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या जर्मन है, सबका एक रूटीन है। बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, थोड़ा रंग अलग है। दर्द पेन उनको भी होता है, क्योंकि आई नोटेड द पीपल्स, दे क्राइड इन द फ्रंट ऑफ मी। अमेरिकन born people, Germany born people, they cry. They have the emotion. Everybody have the emotion. But their upbringing change their level of thoughts. उनकी लालन पोषण उनके विचारों को बदलती है। हमारा लालन पोषण। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने किसी इस्लामिक व्यक्ति हमारा सामने है ना, वो कभी ध्यान देगा इन चीजों पे? नहीं देगा। वो तो अल्लाह है, पारा अल्लाह करेगा। भोलेनाथ उसको सजा नहीं दे रहे कि भोलेनाथ त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, मेरे को मारने दिया। जस्ट वन explanation from apple to show the meaning of a। एक एप्पल दिखा के आपको ए का महत्व बता रहे, एक भेरू की मूर्ति दिखा के बी का महत्व बता रहे। केवल आपको आकार से निराकार दिखा रहे हैं। आपका ईश्वर, आपकी शक्तियां सभी आप में मौजूद हैं। एवरी डिवाइन पावर इज लाइंग विद इन यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन पावर। क्या बोलूंगा कितनी बार, लेकिन मैं रियली, मैं दिल से बोलता हूं आप लोगों, अपने ऊपर विश्वास करो। ऐसा कुछ हो रहा नहीं, समझ रहा तो कृष्णागुरी से बात करें, यार विषय क्या है। मैं कम से कम आपको गाइड करने में सफल नहीं हुआ तो मैं मिसगाइड तो नहीं करूंगा, इतना तो विश्वास आप लोगों को भी है। और मेरा मानना है कि इंटेंशन साफ हो ना, तो ईश्वर बोलता है मुझसे आपके। और ईश्वर कौन? भगवान। भगवान कौन? व से भूमि, घ से गगन, व से वायु, न से आप जैसा 5 तत्व का इंसान। अगर भोलेनाथ है, अगर विष्णु है, अगर गणेश है, राम है, अभी दिखे क्या आज तक? राम जी का बोलता हूँ कथा भैया, कृष्ण भगवान की कथा है, वृंदावन जाओ। लेकिन आज प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ वी कैन यूज दैट नॉलेज, दैट इज द मेन थिंग। व्हाट द मैसेज, व्हाई लॉर्ड कृष्णा कीप द बांसुरी, व्हाई लॉर्ड कीप मोर का पंख, गायों की सेवा क्यों करी, शिव मृगशाला क्यों पहनता है, कान में बाला क्यों डाल के बताया, क्या बताया? देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ मून। अब आप कल्पना करें, आप स्वयं शंकर शिव है। मून मतलब शीतलता। मूल मतलब बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड शिव जी के सिर पे रखा हुआ है। आज मैंने पढ़ा, तो क्या मतलब, कोई मतलब थोड़ी। मून इज ए कूल प्लैनेट। तो अपना सिर हमेशा ठंडा रखो। और ऊपर पानी गंगा का प्रभाव बता रहा कि शीतलता जितने आपकी माइंड पर, सिर में आपकी आइस फैक्ट्री हो, एक होता ना, और मुंह में आपकी शुगर फैक्ट्री हो, और हार्ट में आपकी फायर फैक्ट्री हो, जुनून। रिमेंबर, एक वन कहावत थी कि कीप शुगर फैक्ट्री इन योर माउथ, keep ice factory on your head. The same thing. Lord Shiva has the ice factory on the head. Sugar factory, मतलब safe with the smile and with the sweetness. मिठास के साथ बात करें। फायर फैक्ट्री जुनून, जुनून। आपकी फायर फैक्ट्री तो आपके स्टमक में ही ऑलरेडी, खाना पचता ही है। लेकिन पर भी दोनों कुछ पाने की, ये करके दिखाऊंगी मैं, अरे मैं अकेले करूंगी, चिंता मत करो गुरुजी, अरे आप आओ बस, ये हो जाए। ये जो जुनून है ना, इसमें ईश्वर है। किसी और के करने के लिए कुछ फीलिंग्स है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिले और उस व्यक्ति को कुछ मिले, उस कार्य में विषय है, उसमें पूजा है, उसमें दुआ है, उसमें अरदास है। लेक्चर बहुत हो गया आज है? एवरीबडी ओके। सो नाउ त्रिशूल इज ए सिंबल ऑफ योर 3 दोषा। मैं आपको काल में भी नहीं ले जाऊंगा, 3 नेत्र में भी नहीं ले जाऊंगा, कि 3 आंखें होती इनसे भी नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल भी। केवल आपके शरीर से जोड़ूंगा। हमारा पहला काम है त्रिशूल को देके शरीर को शुद्ध रखना,
और इन तीनों को, जैसे दुर्गा माता ने भी अपना संहार करते हुए फोटो त्रिशूल लेके आपके हाथ में, हम ये करते हैं कि हमारे तीन जो गुण हैं, अवगुण हैं, इनको हम कंट्रोल में रखें। जो हमारा वात, पित्त और कफ, यह तीनों आपने बैलेंस रखे, थोड़ा देखा, तो आपको कभी कोई जिंदगी में बीमारी हो ही नहीं सकती। बट यू हैव टू चेंज समटाइम जस्ट लाइक ए वेदर, क्योंकि बाहर का भी वेदर का वात, बाहर के वेदर का पित्त कब बढ़ता है, बरसात में, ठंड में, पानी में अलग अलग हो जाता है। ये भी तो वात पित्त कब भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है, आपका शरीर बना हुआ है। तो जिस प्रकार से मौसम के, अगर आप मौसम के फल खाओगे, जो सीजन के फल आ रहे हैं, बहुत कम बीमार पड़ो। हम तो क्या सोच रहे हैं, एंटी मौसम के खाना, विश्व अवर हमारे वो, अगर टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा हो, टमाटर सब्जी बनाना हमारा पैशन है। अरे टमाटर की सब्जी बनी है, हम उल्टा काम कर रहे हैं। अरे मटर कहाँ से मिल गई, अरे इसको हमारी पपिया को बहुत पसंद है मटर की सब्जी, बट वो मटर वो भले कितना फ्रोजन हो करके बना के लाई हो। Always take the seasonal fruit and seasonal vegetable if you want to maintain your all three वात पित्त कफ। पहला सूत्र है, वात पित्त कफ के लिए जो भी आपको मौसम में मिले वो रखें। ठीक है, ये त्रिशूल का मतलब हुआ। आइए मिलकर थोड़ा छोटा सा ध्यान करेंगे आज। जया जी ने माहौल को शिवमय बना दिया, हमने कुछ के वो कर दिया। अब आंखें बंद करें जोर से, लंबी गेंद, और पूरी आंख ऐसी बंद करें कि जिसे मीचते ना, जस्ट क्लोज योर आइज, टाइट टाइट योर आइज।